हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। गेट एकेडमी में मॉक इंटरव्यू का सीरीज चल रहा है। उसमें हमारे साथ हैं परविंदर, हमारा जो पैनल है इंटरव्यू पैनल, तो मेरा नाम दीपराज चंद्राकर है और मेरे साथ है अविनाश तिवारी सर, जिनका अभी IOCL में जो वर्किंग है और 8.5 साल का एक्सपीरियंस है इनको। और मेरे साथ पैनल में है अमित मौर्य सर, जिनका मास्टर्स है IIT बॉम्बे से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। परविंदर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? Good evening, sir. My name is Parvinder Singh, and I belong from Jaipur, Rajasthan. I did my schooling from here only. My mother and father both are government employees. My father is a senior draftsman in Rajasthan Housing Board, and my mother is a government school teacher. And in mechanical engineering BTech from IIT Bhilai, and I graduated in 2021. ओके, सो आप ग्रेजुएट हुए 2020 में और 21. आप गेट दिए 2022 में। जी सर. ओके, तो एक साल आप प्रिपरेशन कर रहे थे। यस सर. ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? थर्मोडायनेमिक्स है, अप्लाइड एंड बेसिक थर्मोडायनेमिक्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्म भी अच्छा लगता है एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी अच्छा लगता है सर। ओके, डू यू हैव पेन पेपर? यस। ओके, इफ यस। यस सर. ओके, ड्रॉ a simply supported beam, carry UDL over the length and the beam cross section is rectangular. यूडीएल सर. Yes. यस सर. Okay, and beam cross section is rectangular. यस. Draw shear force and bending moment diagram. यस सर. Okay, can you show me? It will be properly visible sir. My camera quality is Okay, not it's so good. okay. uh, Okay. शेयर फोर्स कहीं पे जीरो हो रहा है उस पे? जी सर. मिड कहाँ पे? स्पैन पे, मिड पॉइंट, मिड स्पैन पे अच्छा, जीरो हो रहा है. मिड स्पैन पे। कैन यू टेल मी सेफेस्ट पॉइंट ऑफ द बीम? Safest point of the beam, because the shear force is less destructive as compared to bending moment. Bending moment has more effect, so I think the safest points will be the corners of the simplest of supported beam. The middle point will be the most critical point which we need to design. Can you draw state of stress of the end points? State of stress of the end point. Yes. So there will be no shear. There will be pure shear force only, because at the end point there is no bending moment, so there will be no normal stress. There only shear stress will be acting on the corner. But beam has a rectangular cross section. Yes sir. So top of the beam will have what kind of a state of stress? If it's applying like this, no? Top of the, oh, okay.
Top of the beam, sir, it will be having shear force only, no? Because at the end points of the simply supported beam, the bending moment will be zero. So by if you use the formula throughout the cross section, the normal stress will be zero only. Can you tell me shear stress distribution? Shear stress distribution for rectangle, it will be parabolic, sir, like Parabolic. Parabolic. Okay. In the midpoint, in the like the neutral axis, it will be maximum. At the top and the bottom, it will be zero. Okay. So can you draw state of stress for the middle of beam and middle of the rectangle? Okay. So at the neutral axis, at the midspan. Yes. So it will have my by n by 0, so it has 0. It will not have any normal stress also, because my by y is 0 from the neutral axis. It will also have pure shear stress only, and the shear stress will be maximum at that point. But as you drawn SFD BMD, but SFD is 0 at the midspan. Yes, sir. So there is no shear force. Okay. So if the midpoint will have no shear stress also, and no normal stress also, it will be having stress-free zone. Stress-free zone. So Okay. Is it safest point? Yes, sir. Okay. It will be the safest point. Okay. Thank you, Parvinder. Sir. तो परविंदर, जैसा कि आपने बताया कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में क्यों आना चाहते हैं? पहला क्वेश्चन ये है मेरा। सर मतलब बचपन से ही हमारे घर में जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिस्पेक्ट काफी हाई रही, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो मेरा शुरू से ड्रीम यही था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में ही जाऊं। फिर जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, तो जो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, अगर आईईएस यूपीएससी को छोड़ दें, तो वो पीएसयू के अंदर ही है। तो इसलिए फिर मैंने गेट की प्रिपरेशन करके फिर पीएसयू के अंदर आई एम ट्राइंग टू। सो व्हाई गवर्नमेंट जॉब, व्हाई नॉट प्राइवेट जॉब? क्या प्राइवेट जॉब में रिस्पेक्ट नहीं है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ। इन इंडियन सोसाइटी से प्राइवेट जॉब की रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम तो है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब इनहेरेंटली हमें ज्यादा रिस्पेक्ट तो देती है। प्राइवेट जॉब मतलब ऑफ कोर्स देयर मच मोर ग्रोथ पोटेंशियल इज देयर एज कम्पेयर टू पब्लिक जॉब, बट स्टार्टिंग से ही माइंडसेट ऐसा ही बन गया था कि नहीं, पब्लिक जॉब गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, प्राइवेट जॉब में नहीं जाना। ओके, वेरी वेल सेड। ठीक है। अच्छा, मुझको ये बताइए, आपने बताया कि थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देता हूँ। आप जिन्हें कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, ठंडी है, चिल्ड है बिल्कुल, जब हम खोलते हैं तो अचानक से उसमें सडन आइस फॉर्मेशन हो जाती है। या लोग बियर की बोतल जब चिल्ड है और उसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो आइस फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, बताइए। सडन प्रेशर ड्रॉप सर, क्योंकि जो हमारे जो ड्रिंक्स हैं वो मतलब एरेटेड जो है वो अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हाई प्रेशर में सील की जाती है। तो जब हम एकदम से उसको खोलते हैं तो वो जो अंदर का प्रेशर वो एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ड्रॉप कर जाता है, फिर टेम्परेचर फिर भी कम है, इसलिए वो फ्रीज हो जाता है। ओके, गुड गुड। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज योर आइडियल पर्सनालिटी? सर मेरा मैथ्स में जो रामानुजन सर है वो, और उनका मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैथ्स मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। तो रामानुजन सर का काफी आइडियल, उन्हें बहुत फॉलो करता हूँ। ओके, तो आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं फिर? अगर रामानुजन सर आपके फेवरेट हैं, तो व्हाई यू आर कमिंग इनटू फील्ड जॉब? व्हाई नॉट बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट और समथिंग? सर मैथमेटिक्स एक्चुअली मोर ऑफ अ साइड हॉबी प्रेफर करता हूँ मैं। मतलब मुझे उसको करियर बनाना, क्योंकि ऐसा भी है ना कि जिस चीज में अगर आप लगे रहते हैं लगातार, तो उसका पैशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और मैथ से मेरा प्यार कुछ ज्यादा ही है, तो मैं चाहता नहीं कि इसमें मैं करियर बनाऊं फिर और उसके बाद उसका पैशन में लूज कर जाऊं। तो इसलिए मैथ को एज अ साइड हॉबी रखना चाहता हूँ मैं, उसको अपना करियर नहीं बनाना चाहता। ठीक है, ओके। अच्छा, आप अगर ऑयल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं इन केस, तो ऑयल इंडस्ट्री में ही क्यों आना चाहते हैं? आपके पास तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, एनटीपीसी है, सेल है, स्टील इंडस्ट्रीज है, पावर इंडस्ट्रीज है। व्हाई ऑयल इंडस्ट्री? एक्चुअली आईओसीएल सर एक जो मतलब जो मेरा ड्रीम पीएसयू है आईओसीएल, उसका एक मतलब काफी क्लोज कनेक्शन रहा है, क्योंकि बचपन से ही हमारे घर में सिलेंडर्स जो है वो आईओसीएल के आते रहे हैं।
और जो पेट्रोल वगैरह पेट्रोल पंप भी हमारे आईओसीएल के, तो हमेशा से इंटरेस्ट था कि क्या होता है, मतलब कैसे, मतलब हम क्रूड ऑयल से पूरा पेट्रोल निकाल के और फिर यहाँ तक आता है। तो जो पूरा प्रोसेस था उसमें स्टार्टिंग से मेरा काफी इंटरेस्ट था, और आईओसीएल का इस वजह से तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा था कि ऑयल इंडस्ट्री के पीएससी को ज्वाइन करो। ओके। अच्छा, तो मुझको ये बताइए आप कि आईओसीएल में आप आपका इंटरेस्ट रहा है काफ़ी, तो क्या इस कंपनी का आप कोर वैल्यूज जानते हैं क्या क्या है? नो सर, इतना मैंने अभी रिसर्च नहीं किया क्या है इस कम बस। ओके ओके, प्लीज कैरी ऑन। तो ओके। आईओसीएल कोर वैल्यूज के बारे में तो मुझे नहीं पता अच्छा, है आपको सर। इस कंपनी का विजन और मिशन पता है क्या है? नो सर। ओके। ठीक है। अच्छा, और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप आईओसीएल जब बात करते हैं तो आपको पता है आईओसीएल एक बहुत बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है। जी इट्स सर। ए इंडस्ट्री इनसाइड इंडस्ट्री। जी सर। इसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं, जैसे कि पाइपलाइंस डिविजन्स है जो राजस्थान में मेनली है। जी सर, जयपुर में ही आपको एक पता, पाइपलाइन डिवीजन है। बिल्कुल यस सर। जयपुर में है। इवन मैं पोस्टेड भी रहा हूँ सालाया मथुरा पाइपलाइन में। जी सर। तो पाइपलाइंस डिवीजन है, मार्केटिंग डिविजन है, रिफाइनरी डिविजन है, बिजनेस डेवलपमेंट है, एंड आपका बिजनेस डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो आप कौन से डिवीजन को प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे? सर मतलब मेरा हमेशा से इंटरेस्ट इस चीज में रहा है कि क्रूड ऑयल से जो हमारा जो एक्चुअल ऑयल एक्सट्रैक्शन कैसे होता है उस वाले पार्ट में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आई वुड मोस्ट प्रिफर रिफाइनरी डिवीजन, क्योंकि उसमें एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल जो अपना पेट्रोल जो सेपरेट होता है, डीजल जो सेपरेट होता है, उसके अंदर मैं ज्वाइन करना चाहूँ। ओके, रिफाइनरी डिविजन आप प्रेफर करेंगे उसको। जी ओके, सर। चलिए। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको आईओसीएल में पोस्टिंग दी गई तो रिफाइनरीज पता है आपको कितनी है आईओसीएल में? नंबर तो मुझे नहीं पता है, पर मुझे कुछ लोकेशंस पता है। तो दिल्ली और अपना एक वाइजैक में है, एंड क्या ठीक है। एक मुंबई में भी है शायद। ठीक है, सबसे बड़ी रिफाइनरी आपको पता है ऑयल इंडस्ट्री में किसके पास, कौन सी कंपनी होल्ड करती है? ओएनजीसी सर। नो, नॉट ओएनजीसी बट रिलायंस। अच्छा, रिलायंस प्राइवेट होते हैं। मुझे नो प्राइवेट के इशू। बारे में इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, चलिए। आप ऑयल इंडस्ट्री में तो आपको मेरे ख्याल से पूरी कंट्री के बारे में या पूरी इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। जी सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको रिफाइनरी आप प्रेफर कर रहे हैं तो रिफाइनरी पारादीप में भी है उड़ीसा में, जो सबसे रिसेंट रिफाइनरी आईओसीएल की सबसे एडवांस रिफाइनरी है, वो पारादीप उड़ीसा में है और आसाम में भी है। तो आपको अगर आसाम या पारादीप पोस्टिंग दे दी जाएगी तो क्या आप सेटिस्फाइड रहेंगे? यस सर, कि अभी तो मतलब अनअटैच्ड हूँ मैं, मेरे पास कोई ऐसा ना ना मैरिज का कोई झंझट है सर। अभी तो यंग हूँ मैं, तो अभी तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, तो जहां पे भी कंपनी पोस्टिंग देगी आई वुड बी सेटिस्फाइड। चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है सर। मौर्या सर प्लीज। बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ठीक है, 3rd रैंक आपने स्कोर किया। थैंक यू सर। बिल्कुल। परविंदर, जैसे आपने बोला कि आपका जो है वो थर्मोडायनामिक बेसिक है एंड एप्लीकेशन जो है वो आपका मतलब बेस्ट है। तो मैं एक पहला क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूंगा थर्मोडायनामिक्स से कि जैसे मैं आपसे ऐसे बोलूं कि दो प्रोसेस है, लेट्स से दो एडियाबैटिक प्रोसेस है, जी सर। तो क्या दो एडियाबैटिक प्रोसेस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? इज इट पॉसिबल? नो सर, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? सर दो एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर मतलब इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पे स्टेट सेम है, पर फिर वो पॉइंट जो है वो दोनों की जो इक्वेशन है एडियाबैटिक लाइन की, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो केवल एक ही एडियाबैटिक प्रोसेस की लाइन को सेटिस्फाई कर सकता है। क्योंकि अगर हमें इक्वेशन पता है कि कौन सी लाइन है वो एडियाबैटिक की, तो फिर हम हर एक पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके सर। जैसे मैं बोलूँ कि ठीक है, चलिए वो एक कंडीशंस हो गई जो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। लेट्स से एक हाइपोथेटिकल हम कंडीशन क्रिएट करते हैं कि आपने जो बोला वो प्रॉब्लम सेटिस्फाइड हो जा रही है। अच्छा, देन क्या और कोई इशू हो सकता है क्या? मतलब अगर दो एडियाबैटिक लाइन इंटरसेक्ट करें जी। तो क्योंकि दोनों लाइन पे हमारा हीट ट्रांसफर जो है वो 0 होना पड़ेगा, तो हम बेसिकली हीट ट्रांसफर 0 एक सिंगल पाथ है, तो मतलब हम उस एक पाथ मतलब एडियाबैटिक पाथ, क्योंकि हीट ट्रांसफर 0 सिंगल पाथ है और कोई पाथ का हीट ट्रांसफर 0 नहीं हो सकता है दो पॉइंट कनेक्ट करते हुए, तो हम उस एक पॉइंट से दो ऐसे पॉइंट से पहुंच पाएंगे जहां पे हीट ट्रांसफर 0 आ रहा है, तो वो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा
इस assumption को कि एक हीट ट्रांसफर जो जीरो है वो सिंगल पाथ है, वो डबल पाथ हो जाएंगे, एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट होता है। कोई थर्मोडायनेमिक का लॉ वायलेट होता है क्या यहाँ पे? अगर दो एडियाबैटिक लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर जाए तो कोई थर्मोडायनेमिक्स ऐसा लॉ या कोई कंडीशन है जो वायलेट हो रही हो? मोस्ट रेयरली सर सेकंड लॉ ही वायलेट होता होगा, क्योंकि जनरली ऐसे कंडीशन में सेकंड लॉ ही वायलेट होता है। तो चलिए एक बार देखिएगा, ठीक है जी सर। नेक्स्ट जैसे कि जैसे अगर अपन बात करें कि थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल बेसिक चीजें जैसे अगर अपन देखें तो या थर्मोडायनेमिक के एप्लीकेशन से अपन देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे दो मेजर साइकिल है, एक आपकी रैंकाइन साइकिल है और आपकी एक ब्रेटन साइकिल है। तो पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये है कि किसमें मैक्सिमम टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है? रैंकाइन एंड ब्रेटन में अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो किसमें ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसका रीजन क्या होता है? सर गैस जो ब्रेटन साइकिल है, गैस साइकिल है, उसके अंदर हम ज्यादा हाई टेम्परेचर अचीव कर पाते हैं। फर्स्ट रीजन तो ये है कि जो गैस का जो सीपी होता है, जो स्पेसिफिक हीट वैल्यू होती है, वो काफी कम होती है कंपेयर टू वाटर की। तो वाटर को हाई टेम्परेचर पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू सेम एनर्जी। हम गैस काफी कम एनर्जी में गैस को हाई टेम्परेचर पहुंचा पाएंगे। प्लस हाई टेम्परेचर और हाई मॉइस्चर कंटेंट में जो टर्बाइंस है हमारी, इसका इरोजन का चांस बन जाता है। तो वो हाई टेम्परेचर में ज्यादा इरोजन का चांस होता है एज कम्पेयर टू जो गैस होती है, वो इरोड नहीं करती हमारी टर्बाइंस को। तो इस वजह से हम ज्यादा हाई टेम्परेचर अचीव कर पाते हैं गैस के अंदर, अगर हम करना चाहें। ओके, इनवर्स कूलिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट आपने सुना है क्या? मतलब जूल थॉमसन कोएफिशिएंट में एक जूल थॉमसन इनवर्स कूलिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट जो टरबाइन की प्लेट में हम लोग यूज करते हैं, या कूलिंग समथिंग? नो सर, नहीं सुना। ओके, चलिए देन जैसे अगर हम बात करें, मान लो जैसे सिंपली अगर आपसे पूछा जाए, एक कंप्रेसर है, ठीक है, तो कंप्रेसर में दो तीन फिनोमेना होती है, जैसे एक सर्जिंग हो गया, चोकिंग हो गया, ठीक है, तो क्या ये आप समझा सकते हैं कैसे होता है? स्टॉलिंग, हाँ, मतलब तीनों फिनोमेना जो अपनी होती है, सर्जिंग, चोकिंग एंड स्टॉलिंग। चोकिंग सर जब मैक नंबर 1 हो जाता है, बेसिकली दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। एंड स्टॉलिंग जो होता है व्हेन द फ्लो इज नॉट एबल टू फॉलो द कंटूर्स ऑफ द ब्लेड, कंप्रेसर ब्लेड, उसकी वजह से अगर फ्लो सेपरेशन हो जाए तो वो स्टॉलिंग होता है। और अगर सर्जिंग बेसिकली अगर प्रेशर, बैकवर्ड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो जो फ्लो है वो बैकवर्ड फ्लो करने लग जाता है, इसका इसमें काफी डैमेज हो जाती है, तो उसको सर्जिंग। ओके, और जैसे स्टॉलिंग जो फिनोमेना होती है, ठीक है, ये मेनली कौन सी टाइप की प्रोफाइल में होती है और इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसा ना हो, या एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? सर बेसिकली हम चाहते हैं कम डाइवर्जेंट, मतलब एंगल जो है वो थोड़ा स्मूथ हो, बहुत ज्यादा शार्प प्रोफाइल ना हो, इससे इजियर जो वाटर है वो इजीली फॉलो कर पाता है। प्रोफाइल तो सर मुझे नहीं पता कौन से वाले कंप्रेसर ब्लेड की प्रोफाइल में ऐसा इशू आता है। ओके, जब स्टॉल फिनोमेना होती है किसी कंप्रेसर में, तो वहां पे ड्रैग एंड लिफ्ट का क्या रोल होता है? ड्रैग एंड लिफ्ट, क्योंकि मतलब अगर फ्लो सेपरेशन हो रहा है तो ऑफ कोर्स वहां पे वर्टेक्सेस बनेंगी, तो वो जो वर्टेक्सेस हैं वो काफी डैमेज करती है, तो ऑफ कोर्स वो जो ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स जो उसमें जनरेट होगा वो ऑफ कोर्स कंप्रेसर को रोकेगा, बेसिकली जो जिस डायरेक्शन में घूमना चाह रहा है उस डायरेक्शन में, तो ऑफ कोर्स वेरी हार्मफुल फॉर द कंप्रेसर। ओके, चलिए जैसा कि अभी आपने बोला कि चोकिंग में जो है अपना मैक नंबर 1 हो जाता है, ठीक है, जैसे थ्रॉट पॉइंट पे देखें क्रिटिकल जहां पर कंडीशंस होती है, तो लेट्स से कि अगर हम मान लो क्रिटिकल पॉइंट पे जाएं, ठीक है, क्रिटिकल जहां पर कंडीशंस है, एरिया को सेम रखें हो सके, और वहां पे बैक प्रेशर को अगर हम रिड्यूस करें एक लिमिट के बियॉन्ड, ठीक है, देन क्या होता है? मास फ्लो इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? बैक प्रेशर को अगर हम रिड्यूस करें तो मास फ्लो रेट तो कांस्टेंट रहेगा, अगर एरिया हम कांस्टेंट रख रहे हैं मास, तो आई डोंट थिंक, क्योंकि प्रेशर हमारा इनलेट प्रेशर तो वेरी नहीं कर रहा है ना सर, बैकवर्ड प्रेशर, तो आई डोंट थिंक मास फ्लो पे कोई इफेक्ट पड़ना चाहता है, क्योंकि हमारा तो मेन इशू तो P/PC जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है उसी का होता है, तो आई डोंट थिंक कि मास फ्लो रेट पे कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार देखिएगा ग्राफ थोड़ा सा सर्चिंग वाला। देन एक क्वेश्चन, जैसे अगर आपसे हम ये बोले कि लेट्स से कि आपका प्री वेल्डिंग होती है, जैसे आपने मे भी देखो कंप्रेसर में हम क्या करते हैं, प्री वेल्डिंग करते हैं, तो
प्री वेल्डिंग करने का लॉजिक क्या होता है, ऐसा हम क्यों करते हैं? बेसिकली हम पानी में सबमर्ज क्यों करते हैं? नहीं, प्री वेल्डिंग आपने देखा होगा कि स्टार्ट करने से पहले हम उसे प्री वेल्ड करवाते हैं, अच्छा। रोटर जो हमारा होता है या प्लेट्स होती है नहीं सर, कंप्लीशन। मुझे इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। या मे बी आपने कहीं देखा होगा लिखा होता है कि स्टीम इंटर या जेट इंटर विदाउट एनी सॉक, नहीं सर, एंट्री सॉकलेस, समथिंग ऐसा कुछ, सॉकलेस एंट्री टू द टरबाइन। अच्छा, मे बी हम, क्योंकि शॉक आता है जब मैक नंबर हमारा 1 होता है, उसके बाद डाइवर्जन पोर्शन में शॉक आता है, तो मे बी हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं चलिए छोड़िए। बाय प्री वेल्डिंग। दो डिफरेंट फ्लूइड है, जैसे आपका एक पेट्रोल हो गया, एक डीजल हो गया, दोनों में स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी ज्यादा होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी सर, जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आई थिंक डीजल की ज्यादा होती है कंपेयर टू पेट्रोल। डीजल हैवी है। अगर आपसे बोला जाए 1 लीटर आपको डीजल मिल रहा है, 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो बाई मास कौन सा ज्यादा होगा क्वांटिटी? बाय मास आई थिंक डीजल ज्यादा होना चाहिए। चलिए, आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, तो वहां पे पेट्रोल या डीजल को लिफ्ट करने के लिए हम कौन से टाइप का पंप यूज करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप सर। चलिए देखिएगा एक बार सारी चीजें। ठीक है सर। सर, जी सर। परविंदर, आप टेम्परेचर स्केल सुने हैं? जी सर। क्या होता है? मतलब सर, टेम्परेचर स्केल बेसिकली हमें, अगर मतलब पहले तो 2 पॉइंट्स डिफाइन करके हम किसी भी टेम्परेचर को जज कर सकते थे। आजकल हम एक सिंगल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को स्केल पर रखते हुए हम किसी भी दूसरे आर्बिट्री पॉइंट का टेम्परेचर को जज कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स है, जैसे कि हमारा सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, प्लैंकन स्केल है। ओके, क्या सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल कभी बराबर हो सकते हैं? बराबर नो सर, क्योंकि दोनों के बीच में मतलब सेल्सियस और जो केल्विन स्केल है वो लीनियर रिलेशन फॉलो करते हैं, तो मतलब दोनों की रीडिंग सेम साथ में नहीं हो सकती। और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जी सर, हो सकते हैं। कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पे? आई थिंक -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पर मुझे शायद कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू निकाल। ओके। परविंदर, आप क्या मानते हैं आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हो सकते हैं आपके? सर, स्ट्रेंथ है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, एंड टीम प्लेयर हूँ, एंड लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं मेरे अंदर, सो दोज आर माय मेजर स्ट्रेंथ। वीकनेस मेरी मेजर ये है कि सर मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट हूँ, तो मतलब कोई भी काम अगर मतलब 100% कंप्लीट ना हो, तो कई बार मैं डेडलाइन से एक्सीड करके उसको अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, एज कम्पेयर टू जितना कंप्लीट हो चुका उसी को फॉरवर्ड करने में। उसके अपार्ट सर मैं वर्कaholic हूँ, मतलब थोड़ा सा मतलब फैमिली लाइफ और जो प्राइवेट पर्सनल लाइफ है उसको इग्नोर करके, मतलब मैं वर्क पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके जो बाकी चीजें इग्नोर कर देता हूँ, जैसे हेल्थ अपनी, थोड़ा सा खाने वगैरह वाली जो हैबिट है उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देता हूँ, तो वो मेरा एक मेजर वीकनेस है। ओके। आपको गुस्सा किस बात से आता है? अगर कोई काम प्रॉपरली ना हो रहा हो सर, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा होता है। मतलब गुस्सा तो नहीं, स्टार्टिंग में इरिटेशन होती है, अगर फिर भी अगर एक बार कमेंट करने के बाद कि काम सही से फिर भी नहीं हो रहा हो, तो फिर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। काम प्रॉपरली ना हो रहा हो मतलब जैसे कि एक आध उदाहरण दे सकते हैं? जैसे कि मतलब डेडलाइन एक दिन बाद है और अगर मतलब अभी तक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इस चीज का इशू। जैसे कॉलेजेस में हमारे जो असाइनमेंट्स होते थे, जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते थे कि परसों डेडलाइन है, कल डेडलाइन है, और अभी तक जो बाकी ग्रुप मेंबर्स है वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। एक बार मैंने बोल दिया कि भाई कल डेडलाइन है, अभी खत्म नहीं कर पाएंगे हम अगर अभी शुरू नहीं करेंगे, तो स्टार्टिंग में अनाउंस होती है, अगर फिर भी नहीं सुन रहे हैं वो लोग, फिर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। ओके सर। हाँ, तो परविंदर, तो रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे हम लोग। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा यार, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आपने बताया कि रिफाइनिंग प्रोसेस में आपका बहुत इंटरेस्ट है, तो क्या आप जानते हैं क्रूड में से हम क्या क्या चीज़ें रिफाइन करके अलग करते हैं और कुछ मार्केट? प्रोडक्ट्स पता है सर, जैसे हम पेट्रोल डीजल तो है ही, हम कोक करते हैं अलग, हम एंड पेट्रोलियम वैक्स, हम पेट्रोलियम जेली जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड बस कोक मतलब ये मतलब बहुत पहले पढ़ा था सर। पेट कोक आपने जिक्र किया कोक का, तो जो पेट्रोलियम हाँ से जो कोक निकलता है उसे पेट कोक बोलते हैं। तो पेट जी कोक सर, का यूज़ क्या होता है, बता पाएंगे आप? वो मुझे इतना पता था कि वो 100 मतलब काफी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, 100% प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो काफी अच्छी क्वालिटी कोक होता है वो। तो आई थिंक मतलब जहाँ जैसे हमारे
पेट्रोल जैसे हम यूज करते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे एज अ फ्यूल सप्लाई हम इसको यूज कर सकते हैं। गुड गुड। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ऐश कंटेंट बहुत कम होता है, तो इट जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर पावर प्लांट्स। एनटीपीसी इज ऑल्सो आवर बिगेस्ट कस्टमर फॉर दैट। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये है कि अ, आपने बताया कि आपके आइडियल पर्सनालिटी जो है वो डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन है, तो जी आप जानते हैं उनका बर्थ कहाँ पर हुआ था, बर्थ प्लेस? सर, बर्थ तो मुझे नहीं पता है सर, क्योंकि मतलब मैं उनकी हिस्ट्री में इतना डेवलप नहीं किया हूँ एज कम्पेयर टू जो उन्होंने अचीवमेंट्स जो किए हैं, जैसे उन्होंने लंदन में जाके जो थॉमस हार्डी के साथ उन्होंने वर्क किए, मैं उस पर ज्यादा फोकस किया हूँ। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, मुझको ये बताइए आप कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सर मेजर तो मुझे मूवीज देखना पसंद है, टीवी सीरीज देखना पसंद है, सॉन्ग्स पढ़ना पसंद है, एंड गेम्स खेलना पसंद है, जैसे क्रिकेट, सॉकर, मतलब फुटबॉल। हम हमारे घर का बाहर पार्क है तो हम खेलते रहते हैं। साथ में साथ क्योंकि सर मतलब थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, तो सर छोटे बच्चे जो हैं वो मतलब 9-10, बिल्कुल छोटे बच्चे तो नहीं पढ़ा सकता मैं, लेकिन जो 9-10 के बच्चे हैं उनको मैं ट्यूशन दे देता हूँ, मैथ्स और साइंस। चलिए, एक दो आपकी वो उसमें काफी फेवरेट मूवी मजा लगता है। बताइए, फेवरेट मूवी बताइएगा तब। सर रिसेंटली अभी KGF 2 देख के आया हूँ, काफी अच्छी लगी मुझे। और अगर फेवरेट मूवी पूछे तो सर मुझे हैरी पॉटर की जो सीरीज है वो काफी अच्छी लगती है पूरी। तो KGF 2 में आपको क्या पसंद है, ये बता दीजिए। मतलब बहुत अच्छा मतलब स्पॉयलर्स दे दूंगा सर अगर किसी नहीं देखे हुए तो। चलिए, ठीक है ठीक है। अच्छा, चलिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए पारादीप रिफाइनरी है यहाँ पर उड़ीसा में, और वहाँ से रायपुर के लिए एक पाइपलाइन डालनी है हमको। जी सर। रायपुर के लिए एक पाइपलाइन डालनी है हमको, पेट्रोलियम पाइपलाइन, और उसका फ्लो रेट हमको रखना है लगभग लगभग 400 KL पर आवर का। तो आप अच्छा किस कैपेसिटी का पंप जो है वो पारादीप में रखेंगे कि हमको 600 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है एक पंप से ट्रेवल हो जाए, और हमको प्रोडक्ट बिल्कुल रायपुर में मिल जाए, हम उसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए? हेड लॉस को इग्नोर करके सर, मतलब हाँ, तो क्या। बिल्कुल बिल्कुल। जो लैंड प्रोफाइल है उसका हेड लॉस, आप लैंड प्रोफाइल जो है यहाँ पे अप एंड डाउन जो हो रहा है उसके कारण जो लॉसेज आ रहे हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आप अच्छा सर। डिस्टेंस को कंसिडर करके मुझे एक पंप की रफ कैपेसिटी बताइए कि किस कैपेसिटी का पंप मैं 600 किलोमीटर दूर पे लगाऊंगा तो ऐसा पेट्रोलियम दिया प्रोडक्ट कर पाऊंगा डिस्पैच। एंड कितना फ्लो रेट चाहिए था सर हमें? 400 KL पर आवर। 400 किलो लीटर्स पर आवर। हाँ, किलो लीटर्स। ये एक्चुअल कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपकी जो है यहाँ पे। ओके सर, ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ। पेट्रोल की सर स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 0.75 ले लीजिए आप, ये 750 ले लीजिए kg पर मीटर क्यूब में। एंड पाइपलाइन का सर पाइप का डायमीटर 14 मतलब कितना? इंचेस 14 इंचेस 14 इंच। अच्छा, मुझको ये बता दीजिएगा आप कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं, बस इसको निकालने के लिए बस इतना बता दीजिए आप। RC वाइसबैक कौन यूज कर रहा हूँ सर। कौन सा? FL/12.1 D/5 हेड लॉस। ठीक है तो हम उससे फिर रो क्यू GH से हम निकाल सकते हैं कितना पावर चाहिए हो। ठीक है, गुड। अच्छा, अब मुझको ये बता दीजिए आप कि वेयर यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन, आप 5 साल बाद अपने को कहाँ देखते हैं? तो सर मतलब मेरा मैनेजमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो 5 ईयर डाउन लाइन आए मतलब थोड़ा मतलब मैनेजमेंट के अंदर मैं अपना इनपुट देना चाहूंगा, जो बेसिक हमारी कंपनी के जो डिसीजंस होंगे, ताकि मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस मिले, ताकि आगे जाके मोर हायर प्रोफाइल्स में मैनेजमेंट के अंदर मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं। ओके, तो बेसिकली आपको इंजीनियर बनना है या आपको मैनेजर बनना है? स्टार्टिंग में इंजीनियर बनना है सर, फ्यूचर प्लान्स में मैनेजर बनना है। चलिए, एवरी इंजीनियर इज अ वेरी गुड मैनेजर। जी। ठीक है, ओवर टू यू सर। मौर्या सर। हाँ परविंदर, सबसे फेमस राजस्थान का क्या है जो आपको अच्छा लगता हो या आपके उसमें हो? जयपुर सर, मतलब मेरा फेवरेट मतलब बर्ड सिटी है, तो जयपुर मतलब मेरा फेवरेट है। तो जयपुर। मतलब जी जी। मतलब टूरिज्म के मामले में हवा महल, आमेर किला जो वो काफी अच्छा है। साथ में हमारी कचौड़ी और फेनी और घेवर बहुत फेमस है, जो खाने वाला पार्ट है। एंड या
उदयपुर में हमारे जो सिटी है, हमारी बहुत सारी झीलें हैं, उसमें सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है उसको, बहुत सारी सुंदर सुंदर पैलेस है। तो राजस्थान से बहुत अच्छी चीज है। जयपुर में And कहाँ पे रहते हो? जयपुर में मैं रहता हूँ सर मानसरोवर एरिया में। राजस्थान में जैसे कौन सा हिल है, पता है अरावली, क्या? अरावली अरावली। हिल्स। अरावली अरावली का पीक पॉइंट कहाँ पे है? मैंने पढ़ा था ये, मुझे पीक पॉइंट तो याद नहीं है सर, जीके में थोड़ा सा मैं इस मामले में कमजोर हूँ, फैक्ट्स में। चलो, कोई नहीं सर। ओके परविंदर, लास्ट जी सवाल, जी हम आपको रिक्रूट क्यों करें? सर, जो मेरी क्वालिटीज हैं, जो लीडरशिप क्वालिटीज है, जो हार्ड वर्किंग क्वालिटीज है, कंसिस्टेंसी वाला जो है, साथ में जो मेरी टेक्निकल स्किल्स है, आई थिंक वो आईओसीएल के जो विजन है उसके साथ काफी मैच करती हैं, जो फाइनल आगे बढ़ने में मेरा पर्सनल ग्रोथ भी साथ में, कंपनी का ग्रोथ साथ में कर पाएंगे, इसलिए आई थिंक आई शुड बी रिक्रूट। ओके परविंदर, तो आई थिंक डन है ना, हमारे साइड से ये इंटरव्यू हुआ, अब बात होगी फीडबैक की। जी सर। ठीक है, ओके। ओके परविंदर, सो आपके इंटरव्यू का फीडबैक स्टार्ट करते हैं। आपको कैसा लगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया? अगर 10 में से आपको अपने आप को नंबर देना रहेगा तो कैसे देंगे? सर 7.5 नंबर्स में देना चाहूंगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स का जो थ्योरी वाला पार्ट है, ये कंप्रेसर पंप्स वाला जो पार्ट है, ये प्रोफाइल कौन सी है, वो वाला पार्ट मतलब क्योंकि गेट में इतना पूछा नहीं जाता तो मैं इग्नोर करता हूँ उसको। एंड तो वो जो यही वाले पार्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, तो इसलिए वो वाला पार्ट थोड़ा मेरा वीक है। बाकी तो नॉन टेक में तो आई थिंक मैंने सारे आंसर अच्छे से दिए हैं, मुझे लगता नहीं मैंने किसी आंसर में मतलब ब्लंडर किया है। बाकी तो यस। ओके, कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है शायद ये ऑनलाइन की वजह से हुआ होगा। एक बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि आप कोई चीज अगर बता रहे हैं तो आप इस तरीके से आप सोच नहीं सकते, मुझे लगता है कि शायद ऑनलाइन की वजह से हुआ है ना, तो इन जी बातों सर। का ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ, जैसे जो क्वेश्चन नहीं पता आपको, तो उस पे आप या तो सॉरी बोलिए या तो ये कहिए कि अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, जी है ना। तो ये मेरे तरफ से फीडबैक है, सब प्लीज। तो यार परविंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड, काफ़ी थैंक अच्छा इंटरव्यू रहा आपका। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, दीप सर हैं, मौर्य सर हैं, दे ऑल आर टेक्निकली वेरी स्ट्रांग। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इन लोग ने टेक्निकली आपको हर तरीके से टेस्ट किया और आपने काफ़ी अच्छा उसमें रिस्पॉन्स भी दिया। जी तो मैं ये बोलना चाहूँगा यार कि आप देखिए, आप गेट क्वालिफाई करके जा रहे हैं, आप AIR 3 हैं। अब वहाँ पे जो भी लोग पहुंचेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स, सब गेट क्वालिफाइड रहेंगे और टॉप रैंकर्स ही रहेंगे। टेक्निकल सबका स्ट्रांग रहने वाला है। नॉन टेक एक ऐसा पार्ट होगा जो आपको एज दिलाएगा हर इंटरव्यू में। जी तो आप एज पर काम करिए, आपका टेक्निकल तो स्ट्रांग है, वो समझ में आता है। तो आप नॉन टेक पे अपना फोकस करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग उसको मिस करते हैं। इस वजह से क्या होता है ना, एक एज जो होता है वो हमको नहीं मिल पाता, और वो शायद 10 रैंक वाला जो बंदा होगा वो लेके निकल जाएगा। जी और ट्रस्ट मी, रैंक 1 एंड रैंक 100 इज सेम इन इंटरव्यू। रैंक 1 वाला भी रिजेक्ट हो जाता है, रैंक 100 वाला भी सिलेक्ट हो जाता है। इट जी हैपन्स। ठीक है। तो क्योंकि टेक्निकली ऑल आर क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया यार, पहला चीज़ ये था कि आपने जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड लेके चलिए आप। विजन आज के, मैं 10 साल पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, बट उस समय भी उसका, कंपनी का उस ईयर का कोर वैल्यूज क्या है, उसके विजन और मिशन क्या है, कंपनी कहाँ पर लाई करती है, इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सब एटलीस्ट विजन और मिशन तो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। जी इस पे आप ध्यान दीजिएगा। सेकेंड चीज़ है कि आपने अपने आइडियल के बारे में बताया, तो आइडियल के बारे में आप एक ठीक ठाक नॉलेज रखिए कि वो बंदा कहाँ से था, कहाँ गया, क्या क्या किया। तो उनके बारे में बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, जी तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, आपने जो वीकनेस वाला पार्ट जो आपने बताया ना, कि आप हार्ड वर्किंग है, आपको काम कंप्लीट ना होने के कारण जो है आपको अच्छा नहीं परफेक्शनिस्ट लगता, है। हाँ, तो ये अच्छा अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग। आप बेसिकली अपने वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया आपने। तो बेसिकली इट गिव्स यू ए वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन जी फ्रंट ऑफ इंटरव्यू पैनल। तो बहुत अच्छा था ये। और इसके अलावा हॉबीज़ जो हैं, अगर आपकी जो भी हैं, उसके बारे में इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए।
तो जी आपने मूवीज बताया, ठीक है, गुड। तो जो भी है उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई मूवीज में भी क्या क्या किस किस टाइप की मूवीज होती हैं, है कि नहीं, आप किस टाइप की मूवीज, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी निकलेंगे, आप पे क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। और एक चीज जो आपने बोली ना यार, जो मुझको थोड़ा सा वो लगा कि गवर्नमेंट जॉब की रिस्पेक्ट होती है, ज्यादा होती है, ये थोड़ा सा एक्चुअली जब सामने कोई जीएम या डायरेक्टर लेवल के लोग बैठे हैं ना, वहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं है। जी बेसिकली सर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर नॉट फुल्ली गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जॉब है अंडरटेकिंग, नो डाउट, बट दे आर एक्चुअली सर्विंग द नेशन। वी आर बेसिकली generating employment, giving service to the nation and also generating revenues। हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, सर्विस भी दे रहे हैं। और आपको शायद पता होगा कि मोदी जी का जो विजन है प्राइवेटाइजेशन वाला या जी सर मोनेटाइजेशन वाला, तो वहां पे बेसिकली गवर्नमेंट और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है नहीं। यू विल हैव हाँ टू बी ए गुड इंजीनियर। तो आप ये जो डिफरेंशिएट किया ना आपने कि गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, प्राइवेट में नहीं होता है, ये थोड़ा सा मुझको नेगेटिव लगा। जी सर आप इसको जो है थोड़ा पॉजिटिव वे में बोल सकते थे। पॉजिटिव वे में बिल्कुल कैसे बोल सकते थे, आप ये बोल सकते थे कि सर मुझको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में मुझे पब्लिक को सर्व करने का मौका ज्यादा मिलेगा। या आप शायद ये बोल सकते थे कि गवर्नमेंट जॉब में मुझको शायद अथॉरिटीज ज्यादा मिलेगी अपने काम को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। या जी शायद आप ये ऐसा बोल सकते थे कि गवर्नमेंट जॉब में मुझको फियर कम होगा अपने काम को एग्जीक्यूट करना। एज ए इंजीनियर मैं कॉन्ट्रैक्टर को डांट भी सकता हूँ, कहीं गलती हो रही है उसको बेखौफ बिल्कुल बोल सकता हूँ, मुझको किसी का डर नहीं है। जी इस तरीके थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा पॉजिटिवली बोलिए, अपने पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करिए, ना कि दूसरे पॉइंट को कमजोर नहीं करना है, जी ठीक है। बाकी ओवरऑल टेक्निकली वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग। आप नॉन टेक पे थोड़ा सा आप काम करिए, और मुझको लगता है यार आप तो हर पीएसयूज में आप यू विल गेट थ्रू, सेल थ्रू, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच मौर्य सर। हाँ सर, वैसे तो मैक्सिमम सर ने बोल दिया है, ठीक है, और बिल्कुल सर इस एरिया से है भी। मुझे जैसे थोड़ा सा नॉन टेक वाला तो पोर्शन है सर, थोड़ा सा इनको मतलब करना पड़ेगा उस पर वर्कआउट, क्योंकि आईओसीएल जैसे मैंने भी जितना देखा है सुना है, मैं भी एक बार दिया हूँ तो 2012 में। तो मैक्सिमम चीजें वो वही देखते हैं, रैंक का उतना एडवांटेज मतलब होता है नो डाउट, और उससे आप उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी AIR 3 है, तो उस दिन ऐसे भी लोग होंगे जिनकी कुछ और AIR होगी, ज्यादा ही होगी आपसे, मे बी चांसेस ऐसा कम ही होगा कि 1 या 2 AIR वाला कोई मिले आपसे पहले, तो आपके साथ उनका कंपैरिजन भी होगा। जी अगर सर उसने आपसे बढ़िया कर दिया तो फिर थोड़ा सा उधर मतलब शिफ्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक तो नॉन टेक वाला आप अच्छा कर दीजिए, एंड सेकंड टेक्निकल में जैसे मैंने आपको थर्मो से पूछा था कि 2 लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है क्या समथिंग, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें। कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट जो है वायलेट हो रहा होता है, जी सर ठीक है, अगर आप उसको आइसोथर्मल से जोड़ देंगे तो एक इंजन एक डिवाइस आप क्रिएट कर देंगे जो जी कि एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर से रन कर रहा होता है, तो बहुत ही फेमस मतलब पॉइंट है, उसको आपको देखना होगा, ठीक है। जी फिर टरबाइंस में जैसे जो मैंने पूछा था वो भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रिवर्स कूलिंग करते हैं जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर ले जाते हैं टरबाइन में टेम्परेचर, जो आपकी गैस टरबाइन होती है। रेंकाइन में हम नहीं कर पाते क्योंकि मास हैवी हो जाता है, ट्रैप करने लगता है। तो ये पॉइंट जो बहुत कॉमन से पॉइंट है जो आपको थोड़ा देखना होगा, ठीक है, मतलब बियॉन्ड द न्यूमेरिकल एबिलिटी जो भी आपने गेट में किया है। बाकी और तो सही है, कंपनी के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल जीरो हो गए तो वो तो आपको करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। आप मेन इशू ये भी है ना सर, मैं अभी प्रिपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि जब इंटरव्यू आएगा उस टाइम थोड़ा नहीं, तब पहले नहीं हो पाएगा एक्चुअली। अभी आपके पास इंटरव्यू कब है आपका? 1.5-2 महीने का आपके पास टाइम होगा, तो लास्ट में फिर कुछ नहीं हो फॉर्म पाता ही है। नहीं निकला है सर आईओसीएल का। हाँ, कब है? अभी फॉर्म आईओसीएल ने फॉर्म ही नहीं निकाला अच्छा, फॉर्म नहीं आया अभी, तो जब भी होगा, बट उसके लिए आप बैठिए मत, अभी से थोड़ा सा देखते चलिए, ठीक जी है। वो पॉइंट आप डायरी बना लीजिए, उसमें नोट डाउन करते रहिए सारी कंपनी जो जो इस साल रिक्रूट कर रही है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कंपनी के टर्नओवर, जैसे सर ने बोला ही था टर्नओवर, और ये सब कहाँ कहाँ है। अब रिफाइनरीज कहाँ है, कैसे है, जमुनानगर में जो रिफाइनरी रिलायंस की है, तो वो आपको पता होना चाहिए कैसे क्या है, ठीक है। जी आईओसीएल के जो ओवरसीज में जो प्रोजेक्ट हैं वो थोड़ा सा, ये सब सारी से थोड़ा देख लोगे ना, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, जी क्योंकि 15-20 मिनट इंटरव्यू आपका होना है बस, मतलब मैक्सिमम सर 15-20 मिनट होता है, जैसे हमारा भी 15 मिनट 16 मिनट चला था बस, उतने में ही आपका जो भी होगा वो फीडबैक आ जाएगा, ठीक जी है। सर बाकी ओवरऑल तो बढ़िया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, रैंक बढ़िया है, आप थैंक टेक्निकली यू अच्छे सर हैं। बिल्कुल। सर परिंदर, एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि अभी तो आईओसीएल का इंटरव्यू में समय है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले से ही सोच रखें हैं, कुछ पीएसयूज टारगेट कर रखें हैं, तो उस पीएसयूज के बारे में आपको अभी से जो पॉइंट्स है वो गेन करना शुरू कर देना चाहिए, जो जो पॉइंट्स है वो कलेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज जी यही चीज़ें आपको आगे जाके हेल्प करेगी।
हाँ सर, आप कुछ मैं कहना चाह एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हाँ, आप जो है यार ड्रेस पे ना थोड़ा-सा ध्यान, अभी तो ख़ैर मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन में हैं, तो ड्रेस कोड आप अच्छा रखें। दीप सर ने पहले ही मेंशन किया है रहे हैं? कि बी वेल ड्रेस्ड एंड यू नीड टू स्माइल। आप नो डोंट डोंट नीड टू टेक एनी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मत लीजिए, स्माइल फेस रखिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट रॉन्ग आंसर, या उसको स्पेकुलेट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो सामने होंगे वो बहुत आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग बैठे होंगे, तो उनको थोड़ा सा घुमाना मुश्किल होगा। तो अल्टीमेटली इट विल मेक यू एन नेगेटिव इम्पैक्ट। तो बी कीप स्माइलिंग, स्माइल करिए आप, और कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी बातों को कॉन्फिडेंस से रखिए, ड्रेस वेल ड्रेस्ड रहिए, और जो चीज़ नहीं आती है उसको स्माइल करके आप सॉरी बोल सकते हैं। दीप सर ने मेंशन किया है बस। ओके, आप कुछ पूछना चाहते हैं परविंदर? मतलब ड्रेस कोड मेनली मैं यही पूछना चाहता हूँ सर कि मतलब फॉर्मल्स एंड ब्लेजर ऊपर पहनना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, या मतलब ब्लेजर केवल? ब्लेजर सर उतना नीड नहीं होता है तो डाल लीजिए, बट नहीं है तो कोई issue नहीं, नहीं। सूट तो पूरा है सर, टाई के साथ में। फिर तो पूरा लगा के जाइए। ठीक है तो सर। आप लगाइए, लेकिन हाँ, इट शुड बी फॉर्मल ना। हाँ, फॉर्मल। वो पैंट शर्ट और हाँ, हाँ जो कई बार ब्लेजर। लोग ब्लेजर थोड़ा सा ना ट्रेंडी पहन लेते हैं, ना ना तो ब्लेजर वो शुड बी फॉर्मल वाला, फॉर्मल, फॉर्मल होना फॉर्मल। चाहिए। यस। जी। और एंड जी, हाँ सर, प्लीज सर। वही इंटरव्यू के पहले आप बकायदा आप अपने आप को ग्रूम कर हाँ, लीजिएगा, वेल है ना? ग्रूम। हाँ, हाँ हाँ, वही। मतलब दाढ़ी मतलब बिल्कुल क्लीन शेव करके जाऊंगा सर, या फिर? अप टू यू एक्चुअली। आप आजकल तो खैर पीपल डोंट माइंड, क्योंकि बियर्ड रखना इट सेल्फ ए मैच्योर लुक आता है, नो इशू। बट आप जो है यू नीड टू बी वेल ग्रूम्ड। ऐसा ओके नहीं है कि मतलब बिल्कुल बाबा जी बन के जा रहे हैं। जी तो सर। वेल ग्रूम्ड होना है। प्रेफर करेंगे आप कि आप 5 डेज पहले का हेयर कट लीजिए। अगर ओके आप हेयर कट 5 डेज, अगर क्लीन शेव रखते हैं तो सेम डे क्लीन शेव होना चाहिए। और अगर बियर्ड रख रहे हैं तो इट शुड बी वेल ग्रूम्ड, जी कि मतलब ऑड नहीं लगना चाहिए, यू शुड लुक लाइक एन प्रोफेशनल। जी सर। एंड सर, जो जीडी एंड जीटी वाला जो क्वेश्चन होता है, उसको कैसे टैकल करना है? मतलब इंटरव्यू तो ठीक है, मॉक इंटरव्यू पे कर लेंगे, लेकिन जीडी जीटी का कोई आइडिया ही नहीं है सर, हाँ, कैसे? मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा उसमें, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस। मैंने काफ़ी जीडी जीटी दी है उस समय पे। तो देखिए, ग्रुप डिस्कशन में होता क्या है ना, कि आपको इतने लोग रहेंगे, 8-10 लोग ग्रुप रहेगा, और सब लोग जो रहेंगे बहुत अच्छे लोग रहेंगे। तो आपके लिए ग्रुप में एंटर करना विल बिकम एन इट सेल्फ एन चैलेंज, कि मैं उस ग्रुप में एंटर कहाँ से करूँ। सब तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सब बहुत लाउड स्पीकर्स हैं बिल्कुल, और स्ट्रांग स्पीकर्स हैं, बहुत स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। तो एक मैं टिप्स आपको देना चाहूँगा कि ट्राई टू स्टार्ट एंड ट्राई टू फिनिश। आप शुरू करने में हर आदमी हेजिटेट करता है, तो अगर आपको टाइम कम मिलेगा, 2-4 मिनट मिलेंगे सोचने के लिए, उसके बाद पहले कौन बोलेगा ना, ये लोग पीपल लुक फॉरवर्ड टू द पर्सन हु इज स्टार्टिंग। तो अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो इट विल बी एन एडवांटेज फॉर यू। इससे आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी भी शो होती है कि आपने इनिशिएटिव लिया और आपने शुरू किया, फर्स्ट थिंग। और एंड में भी आप जब पूरा डिस्कशन चल रहा है, उसमें आप जो है चीज़ों को सुनिए, कौन क्या क्या बोल रहा है, और ड्यूरिंग कंक्लूजन ट्राई टू समराइज थिंग्स, कि सब ने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि बीच में अगर जीडी जो है एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन थोड़ा सा मोड़िए। जैसे कोई पॉलिटिकल मुद्दा आ गया और बहुत डिबेट हो रही है उस पर, कि नहीं ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए ऐसा, इस गवर्नमेंट ने ये किया है, तो यू जब चीज़ें सैचुरेट हो जाएं, बात खत्म हो जाए, यू नीड टू डाइवर्ट इट। आप उसको डाइवर्ट करके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे लेकर आइए। आप उसको डाइवर्ट करके प्रोग्रेस ऑफ नेशन पे लाइए, कि नेशन का ग्रोथ कैसे होगा। थोड़ा डाइवर्ट करेंगे तो आपको एडिशनल एडवांटेज मिलेगा, आपको कंटेंट मिलेगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी। और दूसरी चीज, किसी को काउंटर बहुत ज्यादा मत करिए आप, बिकॉज वो आपका सिर्फ ग्रुप डिस्कशन में आपका नॉलेज चेक नहीं करते। ग्रुप डिस्कशन का मतलब नॉलेज तो आपका टेक्निकल रिटर्न में हो चुका है, इंटरव्यू में भी हो जाएगा, नॉलेज अच्छे से चेक करेंगे आपका। ग्रुप डिस्कशन में वो जानना चाहते हैं कि आप ग्रुप के साथ बिहेव कैसा करते हैं। आप इंजीनियर तो अच्छे हैं, आप एक मैनेजर अच्छे बनेंगे क्या? आप एक टीम लीडर अच्छे बनेंगे क्या? या टीम के एक पर्सन या पार्टिसिपेंट अच्छे बनेंगे क्या? तो आप औरों को साथ लेके चल रहे हैं या नहीं? तो आर्ग्यूमेंट मत कीजिए अपनी बात। अगर किसी के अपोज में बात है, तो आप उसको ऐसा रखिए, सर आपकी बात ठीक है, यू आर सेइंग दिस, बट आई वुड लाइक टू से माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अपना, आप उनको काटिए मत, उन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। और अगर ग्रुप में कोई ऐसा बंदा दिख रहा है जो नहीं बोल रहा है या बिल्कुल पीछे हो गया, अगर आपको मौका मिलता है बीच में, तो आप बोलिए कि आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हिम एज वेल।
तो इससे ये समझ में आया कि यार आप सिर्फ अपने आप को ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ग्रुप के हर मेंबर के बारे में जो नहीं बोल पा रहा है उसको भी मौका दे रहे हैं बोलने का। तो इससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी, तो इसका ध्यान रखिए। ओके परविंदर, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर मतलब ये तो टेक्निकल इंटरव्यू हो गया। मेरा एक जो ओएनजीसी का जो एक मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, मेरा उसमें भी इंटरेस्ट है, तो वो थोड़ा नॉन टेक पोजीशन है, तो उसके के लिए कैसे प्रिपरेशन करूँ, उसका कुछ आइडिया गाइडेंस मिल सकती है तो? देखिए नॉन टेक में इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आपका पर्सनालिटी ही चेक करेंगे वो, है ना। आप आपको वो तो उनको तो पता है कि आप एक टेक्निकल पर्सन हो, लेकिन आप नॉन टेक पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हो, तो नॉन टेक पोस्ट में वो आपकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, आप सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। हो सकता है आपके सामने ये कुछ ऐसी बातें रखने की कोशिश करे जो आपको उस पर्टिकुलर समय बुरा लग सकता है, मे बी, है ना। तो वो आपकी पर्सनालिटी चेक करेंगे। सर आप हाँ कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, देखिए नॉन टेक्निकल जो इंटरव्यू होते हैं जॉब के लिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर ओएनजीसी का इंटरव्यू है, भले ही वो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है, बट वो टेक्निकल क्वेश्चन तो पूछेंगे आपसे, हाँ टेक्निकल तो क्वेश्चन होंगे। पूछेंगे। हाँ और नॉन टेक्निकल में अगर आप बोलें तो मैं ये बोलूँगा आपको कि उनको ये पता है कि आप यू आर एन टेक्निकल पर्सन, आप नॉन टेक्निकल नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस वो आपको दे रहे हैं ना, उसको अपने तरीके से बेस्ट वे में हैंडल करने की कोशिश कीजिए। उनको पता है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वैसे भी नहीं पता होंगे, ठीक है। तो आप जितना बेस्ट आप कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर नॉलेज, आपको जितना नॉलेज है उसी को उस वहां पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि कोई मैनेजमेंट का इशू है, तो आप टेक्निकली आप कैसे उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। और हाँ, और किसी प्रोफाइल स्पेसिफिक पे आप जा रहे हैं तो उस प्रोफाइल का थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली मटेरियल मैनेजर है तो उसका जॉब होता क्या है। मटेरियल को स्टोर करना, प्रोक्योर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, किसी दूसरे लोकेशन को देना, कहीं से लेना, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। आप आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ भी मैनुअल होता नहीं है। कौन से सॉफ्टवेयर यूज, सैप आजकल जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत वाइडली यूज होता है। तो सैप का थोड़ा सा कि हाँ सर ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो बेसिकली उस फील्ड से रिलेटेड आपको जो जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाए, आइदर थ्रू सीनियर्स और थ्रू आपके पास ऑनलाइन मीडिया है, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बारे में जानकारी रखिए एंड प्रेजेंट योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंस एंड यू विल सेल थ्रू। ओके डन। और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? Okay. ओके थैंक यू सो मच परविंदर, थैंक यू सो मच सर, Thank थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर, एंड Uh, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ एंड लक। ऑल द बेस्ट दोस्त, है ना। अच्छा Thank करो you. आप। ऑल द Thank you. बेस्ट परविंदर यार, मैं तो बोलूंगा आप सभी पीएसयूज में सिलेक्ट हो और ज्वाइन तो एक ही करना है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग ऑफ अच्छा कर देना। चलिए, नहीं ऑल द बेस्ट। आप लाइन पे 1 मिनट रह सकते हैं परविंदर। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना।